Everyone can speak, no issues for that anytime. So any time. So yesterday, whatever I'm talk, if I'm talking about the processor, if I'm talking about the processor, first processor is 4004, second is 8085, third is 8086, fourth is 80186, 80286, 386, 486. Next P1, that is Pentium 1, P2, that is Pentium 2, P3, that is Pentium 3, P4, that is Pentium 4, then Core i5, Core i7, etc. Is it clear? Is it clear? Yes. These are the processor, right? And now question is, only those processor is there? No. So this is the only created by Intel. I'm talking about the Intel only. If I'm eliminating the Intel, rest some companies is there like Motorola, like several companies is there. Those are created the processor, but those are the nothing but a processor. Till today we are say the original motherboard. What is mean by original motherboard? Original motherboard is nothing but a, this is Pentium. Intel, created by Intel, is called original motherboard. We are assumption that is the original. All are original. Is it clear to everyone? Yes. Now question is, this processor is called microprocessor. But now today we are use the processor like Pentium 4, like Core i3, like Core i5, like Core i7. We are called the processor. We are never called the microprocessor. The question is, my question is why? Why we are called the processor and why this is called microprocessor? What is the meaning of microprocessor? Speak, please speak. सर क्योंकि इसमें क्या होता है कि 8085 में हम लोग कुछ काम ही कर सकते हैं, मतलब कि छोटा छोटा काम, जैसे पेंटियम आया पहले 8085 आया था, तो उस समय उतना हम लोग गेमिंग वगैरह नहीं कर पाते थे, मल्टीमीडिया वगैरह सब नहीं कर पाते थे। और पेंटियम जब से आया तब से गेमिंग करने लगे, मल्टीमीडिया वगैरह चलने लगा, इसलिए ऊपर वाले को माइक्रो प्रोसेसर और इसको प्रोसेसर बोलते हैं। Okay. Now I'm coming into the answer. First, I want to speak that, faster. Why bold is so faster? Why not I am? Means I can speak like, what do you mean by microprocessor? Microprocessor is nothing but 805, 806, something like that. So this is called speed. Or I can say, what do you mean by microprocessor? Means my speed also is different with respect to the persons. Maybe your speed is higher than me, or your speed is less than me. Am I right? Yes. Yes, sir. So depend upon the speed. किसके ऊपर speed depend करता है? Nothing but is a clock frequency. Is a called clock frequency. Clock frequency. If I'm talking about the 4004, it is a 750 kilohertz. 750 kilohertz. If I'm talking about the 8085, it's a 3 to 5 megahertz. If I'm talking about the 8086, then it's a 5 to 10 megahertz. Why I'm reading all those things? Means 8085 is a 3 to 5 megahertz. 8086 is 5 to 10 megahertz. So if I'm see all those cases, it is a just incremental in order. Am I right? Yes, sir. It's a 750, but it's a kilohertz. But it's a 3 to 5, it's a megahertz. It's a 5 to 10, it's a megahertz. Means frequency, this is called clock frequency. There is a relation between T and F. T is equal to 1 by F. T is equal to 1 by F. T is nothing but a time.
how much time is required to execute. How much time is required to execute, that is called T. So time is nothing but a T is equal to 1 by F, as T is equal to 1 by F. If frequency is increased, so time will be reduced, so machine will be faster. Is it clear? If T will be, you know, is increased, if T will be increased, then F will be reduced, or F will be increased, then T will be reduced. Just vice versa relations. Am I right? Yes, sir. So frequency is increasing means time will be reduced, so machine will be faster with respect to one to another. Now in Pentium 4, Core 2, Core i3, or all are in a gigahertz. All are in a gigahertz. What is the processor speed? We are saying that 1.5 gigahertz, 2.5 gigahertz, something like that. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So if I am talking about the 5 megahertz, 8085, if I'm talking about the frequency of 8085 is a 5 megahertz, then what will be happen? 5 megahertz. If 8085 is a clock frequency is 5 megahertz, then what will be happen? Clock frequency is 5 megahertz means T is equal to, for 1 T is equal to 1 by 5 megahertz. 1 by hertz means 1 by hertz means it's a second. Mega means 10 to the power 6. So we can say 1 by 5, 10 to the power minus 6 second. Sir, how it is a minus 6? ऊपर गया ना, मिलियन में था तो Very good. It's a mega था, mega मतलब 10 to the power 6. So ऊपर चला गया तो minus 10 to the power 6. So it's a call 1 by 5 microseconds. Called micro second. So this is a micro, that's why I call microprocessor. That's why I call microprocessor, right? Now today we can say gigahertz means not in a micro, maybe below of that. That's why we are cleverly say all are processor, but you can say this is a nano processor or something like that. But that's why we are cleverly say is a processor, but it's a microprocessor. It's a, you know, for T is equal to 0.2 microsecond. Is it clear? Why microprocessor is called microprocessor? Is it clear Yes, to sir. everyone? Yes, sir. Now, whatever I am discussed in the yesterday, I am just elaborate why we will be learn this subject. Why we learn this subject? First of all, I think most of us coming here for a BTech due to, you know, requirement of job. We need the job, you know, after 4 years. Am I right? Yes, no, भाई कुछ भी तो जॉब चाहिए नहीं चाहिए. Yes, sir. चाहिए. सिर्फ तुमको ही चाहिए और किसी को नहीं चाहिए. हाँ? सबको चाहिए सर. सबको चाहिए तो कोई तो कुछ बोल नहीं रहा है. Next, assuming you are coming for an interview, your name is A. Your name is A, right? You are coming for an interview board. Sir, how many will be present in the board? Maybe 2, maybe 3, maybe 4, maybe 5, maybe more than that. Am I right? Yes, sir. Yes, So sir. what are the persons? Like B, like C, like D, like E, like F. These are the 5 persons taking your interview. My question is clear. ये सबको समझ में आया?
क्या बोला? Yes, sir. तुम इंटरव्यू देने आए हो, 5 बंदा इंटरव्यू ले रहा है, BCDEF. What do you feel? What do you feel? You are from which department? You are from which department? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हाँ बोलो। Electric engineering. Electrical engineering. Very good. Sir, these 5 people will be from electrical engineering. No, sir. नो सर। Not never, sir. Remember, these 5 people may not be from electrical engineering. Maybe B is from EC. Maybe C from CSE. Maybe D from mechanical. Maybe E from IT. And maybe F is a better luck for you. That is F is from E, electrical engineering. Only one person from electrical engineering. May not be always. Is it clear? My question is clear to everyone? My concept is clear to everyone? क्या बोला समझ में आया सबको? Yes, sir. देखो प्रैक्टिकल बात हम बोल रहे हैं, is a very important thing in your day to day life. हम थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं कि इसको now we'll be going into some digital portions. Everyone is know, but I'm just recapping all those things. Number system. Can you know the number system? How many number system is there? Which one you learn about? Number 1, binary number system. Decimal. Number 2, decimal number system. Number 3, octal number system. Number 4, hexadecimal number system. Right? Yes, sir. In microcontroller or microprocessor, hexadecimal number system is very, very important. Hexadecimal number system is very, very important. सर कौन सा है इम्पोर्टेंट, कौन सा है? Hexadecimal number system. सर कंप्यूटर तो वही यूज होता है ना उसी में? Right. कंप्यूटर में All the number working with the hexadecimal number system. Means हम ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे सब हेक्साडेसिमल. तो हम थोड़ा इसके लिए थोड़ा हम ज्यादा चर्चा करेंगे अभी. Right? Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Next, hexadecimal number system. In hexadecimal number system, what are the number? First, 0, 1, 2, up to 9. After 9, it will be A, B, C, D, E, and F. Is it clear? Yes, sir. So, what do you mean by A? 10th decimal. 10. B, 11. C, 12. D, 13. E, 14. F. 15. Remember all those things. Okay. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Next, remember one. Any questions? Brajesh, any questions? No sir, no sir. You asked me anytime any questions. I never mind. I can give 100 times any questions answer. 100 times, not less than that. Okay sir. Next, I will be convert from hexa to binary. It's also a very important one. Hex to binary. कैसे क्या हेक्स से बाइनरी हम लोग करेंगे? मान के चलो ऐसा एक नंबर है 7, 8, B, C, D, F, 5. इतना बड़ा एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है. राइट? क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. सर ये आप क्यों सिखा रहा है? ये बहुत बार माइक्रो प्रोसेसर में आएगा, माइक्रो कंट्रोलर में आएगा, हर एक टाइम में आएगा. हम उस टाइम में और नहीं बोलेंगे, अभी बोल देता है, तुमको अभी से सीखना पड़ेगा.
राइट। देखो इसको दो तरीका है, फर्स्ट आई कैन कन्वर्ट इट इनटू द डेसिमल, देन डेसिमल टू बाइनरी। First, I can convert it into the decimal, then decimal to binary. This is a long process, but there is a short process. Remember one code. It is 8421 code. How the code is coming? What do you mean by 2 to the power 0? It's a 1. 1. 1. 2 to the power 1 means 2, 2. 2 to the power 2 means 4, 4. 2 to the power 3 means 8, 8. So I need 8421 code. Next 7. कौन सा नंबर को जोड़ने से 7 होता है? 4, 3, 2, 1. 4, 2 and 1, इन तीनों नंबर को जोड़ने से 7 आता है। Yes, sir. तो हम क्या कर रहे हैं? 0 1 1 1, जिसको जोड़ने से 7 आता है उसको 1 1 कर दिया, राइट? Yes, sir. सर 8 तो ओरिजिनली 8 ही है, तो 1 0 0 0, राइट? सर बी मतलब कितना है? 11. 11 कौन सा जोड़ने से होगा? 8, 2, 1. 8 to 1. 8 to 1 means 1 0 1 1, 1. राइट? Yes, सी sir. सर मतलब 13. सी मतलब और 12. 12. 12, ये याद रखना पड़ेगा। 12 मतलब कौन सा जोड़ने से होगा? 8 and 4. 8, 4. 8 1 1 0 0। डी सर 1 1 0 1। ई सर एफ सर 1 1 1 1। 5 सर 0 4 1 0 0 1. 1। 1. This is the binary. It's done. Is it clear? जी सर. Yes, sir. Any doubts? Anyone? No doubt, sir. No sir. No doubt. Very good. But 8421 is magic, sir. Magic. Exactly. Next, coming into the additions. AB plus CD. How you can add? Tell me anyone idea. Sir, first is change binary number. फर्स्ट में हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, उसके बाद फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। यही तो बोलना चाहते हो? Yes, sir. वही बोलना चाहोगे तो हम वो तो करेंगे नहीं, इसीलिए तो हम वो बोला नहीं। और एनीवन? कुछ भी बोलो ना। हेक्साडेसिमल सीधा बाइनरी में कन्वर्ट करके ऐड कर देंगे। वही तो बोला, हेक्स टू बाइनरी करके ऐड करके फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल करेंगे। देखो अभी हमारा तरीका सुन लो, बहुत ध्यान से सुनना। डेसिमल का एडिशन सिस्टम जानते हो तुम लोग? एनीवन? नहीं जानते हो? डेसिमल का एडिशन जानते हो कि नहीं? डेसिमल Yes, sir. Yes, sir. Yes. नहीं जानते हो तो बोल दो नहीं जानते हैं। नहीं जानते, sir. नहीं जानते, डेसिमल का नंबर सिस्टम एडिशन नहीं जानते हो। जो नंबर करते हो बाजार में, जो को जाकर बोलते हो 10 रुपया किलो है तो 1.5 किलो का कॉस्ट कितना है? 15 रुपया। कैसे आता है डेसिमल नंबर सिस्टम? हाँ सर, जानते हैं। जानते हैं। और क्या है? नेहा तुम जानते हो क्या? शायद नहीं है, यही देख रहे हैं। मनीष Yes sir. जानते हो ना? Yes sir. अच्छा, पिंकी जानते हो? Yes, sir. जो तुम है, नेहा लाइन में नहीं है, जो भी है मार्क करके रखे। हम नंबर इसी के हिसाब से देंगे ना, मार्क हो जाता है, इसीलिए नाम को बुलाता है। इसीलिए तुम लोग को देखते हैं, तुम लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? नहीं सुन के कोई फायदा नहीं है। 78 79 नेक्स्ट 96 हम ऐड कर रहे हैं डेसिमल में। क्या होता है सर? 9 + 6 5. 5. 5 carry 1. Am I right? Yes, Yes, sir. sir. Question is Five. why? Why? Question is why? क्यों करते हैं? Sir, decimal में बस Sir,
डेसिमल से 0 to 9 तक ही वैलिड है। वैलिड है, तो 15 आया, तो 1 को क्यों, मतलब एक घर इधर आ गया तो इसके ऊपर कर दिया यस सर, ज्यादा हो गया। ना। कॉन्सेप्ट इज दैट व्हाट आर द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। बेस मतलब डेसिमल में 10. कितना नंबर है? 10 नंबर है 10. सर। Base is 10. What are the base of the hexadecimal number system? 16 16, exactly. So base of the number system is 10 in decimal. So that's 10 why 15 minus 10 is a 5. This 5 coming over here. And 10 means 10 into how much? 1. This 1 coming here as a carry. Is it clear? यस सर। सर हम लोग क्या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं? लाइक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, जो इससे छोटा है। मतलब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ऑफ 10। ये दो नंबर के ऐड कर रहे हैं हम, अभी करीब 10 नंबर को ऐड करेंगे, तो हम लोग कभी 20 भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कभी 30 भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कभी 40 भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग 10 into how much it will be coming here as a carry, right? Is it clear? यस सर। So 9 plus 1, how much? 10, 10 plus 7, 17. 17, Again 17 minus 10. How much? 7. 7 will be put it over here, and 10 means 10 into how much? 1. 1. 1 coming here as a carry. So 175 is the answer. Is it clear? यस सर। This addition is clear, जो तुम लोग हर एक दिन करते हो। इसमें किसी का कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है तो पूछो। सर ये Yes, sir. बाइनरी और ऑक्टल में भी करेंगे तो सेम ऐसा ही सेम सम, सारा नंबर सिस्टम में सेम होगा, सारा नंबर सिस्टम में सेम होगा। वो दूसरा आ रहा है, पहले इसमें कोई क्वेरीज है? नो सर। किसी का कोई क्वेरीज नहीं है? एक बार अगेन फिर से थोड़ा सा मतलब बता सकते हैं सर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हम बता सकते हैं। 9 plus 6 कितना हो रहा है सर? 15। 15 ये नंबर सिस्टम जो है डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस है 10। दैट्स व्हाई हम 10 सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, 10 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक 10, 20, 30, 40, 50 ये सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। तो मैंने 10 सब्सट्रैक्ट किया, कितना Yes, आया? sir. 5। 5. ओके, यस ये सर। जो 5 हमारे पास रिजल्ट आया, ये इधर हम पुट कर दिए। 10 Yeah. into how much? 1. This 1 1. coming here as a carry, so total मिला के आया 17। 17 से again 10 सब्सट्रैक्ट किया, 7 आया, 7 इधर पुट किया। 10 into how much जो सब्सट्रैक्ट किया? 1. 1 here coming here as a carry। सर क्या क्या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं? लाइक 10, लाइक 20, लाइक 30, लाइक 40, लाइक 50, लाइक 60। पहले देख लेना पड़ेगा, इससे छोटा होना चाहिए। या इज इट क्लियर? इन केस 15 में हम लोग 10 माइनस किए, इन केस मेरा वहां पे 25 रहता तो हम तो उसमें 20 माइनस 20 सब्सट्रैक्ट करते थे, या तो 2 अगर कैरी में आता था। 20 सब्ट्रैक्ट करते तो उसमें फिर कैरी मेरे को कितना मिलता था? 2 10 into how much? 10 into 1 ये 10। ना 20 मतलब 10 into how much? 2 सर। 2 coming here as a carry. यस सर, क्लियर। Is it clear? यस सर। Now what do you mean by B? B मतलब कितना है? 11. D मतलब कितना है? 13 30 13 plus 11 मतलब क्या है? 13 24 24 24 minus 20 करेंगे? यस सर। No sir. 16 What are the 16 base of the करेंगे number sir। system? 10 16। इधर बेस 10 नहीं है सर, इधर बेस 10 था, इधर बेस 16 है। 16 सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, 32 कर सकता हूँ, 48 कर सकता हूँ, ऐसे करके चलेगा, 64 कर सकता हूँ, ऐसा। इज इट क्लियर? मल्टीपल्स कर सकते हैं सर। 16 का मल्टीपल बट इससे 8 छोटा का होना चाहिए। मल्टीपल सर, हैं? बोलो बोलो। 8 का मल्टीपल ना, 8 क्यों होगा? ये तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना है? 16 16 सर। 16, तो 16 का मल्टीप्लिकेशन होगा।
either 16 होगा और 16 का multiply factor like 16, 32, 48, 64 and so on. Is it clear or not? Yes sir, clear. So कितना आएगा सर? 8. 8. Is it clear? So 16 means 16 to how much? 1. 1 coming here as a carry. Right? Yes, sir. Sir, A means? 10. C means? 12. 12. 12. 10 plus 12, 22 plus 1, 23. Yes sir. Yes, sir. So 23 minus? Minus? 16. 16 again. कितना होगा sir? 7. 7. 7 will be put it over here and carry is a 1. So 178 is the answer. Is it clear everyone? Is it clear? Yes sir. Yes sir. समझ में नहीं आया तो बोलो. सर अगर दो नंबर्स को जोड़े और कैरी में कुछ भी नहीं आए तो उसका मतलब कैरी क्या समझेंगे कि 0 है कैरी या फिर कैरी नहीं आएगा. मान के चलो ये 5 plus 3 था 8 8 ही बैठ जाता था. मान के चलो इधर 5 था इधर 6 था. 5 plus 6 कितना होता है? 11. तो 11 में क्या होगा? 16 से बड़ा क्या छोटा? छोटा. तो क्या होगा? 11 मतलब क्या है? बी बैठ जाएगा. इज इट क्लियर? यस सर. अभी क्लियर और होगा क्योंकि हम अभी तुम लोगों को देने वाला है. प्रैक्टिस करने से क्लियर हो जाएगा सर. हाँ करो. एक ही कराएंगे बस बात खत्म. सर थर्ड नंबर क्या 98 98. BC C5 98 D5 5E FC DC and 58. कितना आया? पहले बोलो राइट साइड वाला जो है ये ऐड करके कितना आ रहा है? 2 सर. हैं? 0 सर. ना 2 0 जो भी है टोटल कितना आ रहा है? 76. 76. 76 को 64 से माइनस करेंगे माइनस करेंगे. 12 आएगा. यस सर. वेरी गुड. 12 कैरी. 12 आएगा राइट. 12 मतलब 12 मतलब C. और C. 64 मतलब 16 into how much? 4. 4 coming here as a carry. अभी ऐड करो. 87. 87. अभी बोलो क्या करना है? कितना Sir, सब्सिट्यूट करना 80 से है? 80. 80. वेरी गुड. 5. 7. Yes sir. और 5. 16 into how much? 5. 5 coming over here. 5 7 C is the answer. Yes sir. It's clear to you? Yes sir. Yes sir. यस सर.
ऑक्टल में एक दे, यदि फिर भी हमारा सिलेबस में नहीं है, ऑक्टल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी, बट फिर भी तुम लोग सिखा ही देते हैं। 67, 54, 36 ऐड करके कितना आएगा इन ऑक्टल नंबर सिस्टम, नॉट इन डेसिमल। पहले बोलो इन तीनों ऐड करके कितना आता है? 17 17। 17 कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 10 16 है 16 नो सर 24 सर। 16 यार 16 सब्ट्रैक्ट करने से 1, 16 मींस 2 8 into 2, 2 कैरी जाएगा 2 carry, right? 6 plus 3, 9 9 plus 7, 16 है? यस सर। कितना 201. सब्ट्रैक्ट करेंगे? यस 2 नंबर सर 16 0 आएगा। 16 0 0 कैरी होगा। ना, 0 इधर आएगा। अच्छा 0 इधर Zero. आएगा। 8 2 कैरी जाएगा। into 2, so 201 is your answer. Oh, 201. 201 is your answer. Yes. Is it clear? Yes, sir. नेक्स्ट एडिशन तो हुआ सर, सब्सट्रैक्शन। $82 minus 24, सर क्या है डेसिमल में की? डेसिमल डेसिमल डेसिमल, और तुमको हेक्साडेसिमल में भी दे देता हूं। C2 minus 14, C ना D2 minus 14। पहले डेसिमल में आऊं, 2 से 4 कैसे सब्सट्रैक्ट होगा सर? हैं? सर 10 कैरी लेकर 2 पे जोड़ देंगे। वेरी गुड, मतलब 2 assuming as a 12, am I right? Yes, sir. सर why 10 जोड़ रहा है? सर 10 क्यों जोड़ रहा है इसके साथ? डेसिमल सर बेस है सर। डेसिमल है, बेस 10 है, इसीलिए 10 जोड़ रहा हूं। इज इट क्लियर? Yes, sir. So 2 plus 10 is equal to 12. Am I right? Is it clear? Yes, sir. तो 12 से 4 सब्ट्रैक्ट करने से कितना आएगा सर? 8. Now 8 assuming as a 7 or 2 assuming as a 3. Am I right? Why? ये 2 को मैंने 12 पकड़े हैं, इसीलिए 2 को 12 पकड़े हैं, इसीलिए हम 8 को 7 पकड़ेंगे और 2 को 3 पकड़ेंगे। Am I right? सर 3 क्यों? 2 को 3 क्यों कर सर? नो सर। अरे इधर 2 को 12 पकड़े है ना, यस सर। इसीलिए तो हमको 8 को 7 पकड़ना है यस और 2 को 3 पकड़ना है, कोई भी एक। सर तो नीचे को क्यों चेंज करेंगे? किसी को चेंज ही नहीं करेंगे, हम लोग तो सब माइंड में होगा। वो सर बोल रहे हैं 2 को 3 मान लो या फिर 8 को 7 मान लो। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो सर ऊपर उसे एक बोरो लिए तो 8 को 7 कर देते हैं ना सर। सबसे अच्छा वही है, सबसे अच्छा वही है। 8 को 7 पकड़ो, तो 7 से 2 सब्ट्रैक्ट करने से कितना आएगा? 5। वेरी गुड, एक क्लियर हुआ सबको? यस सर। अभी इसको 2 को कितना पकड़ेंगे? 16 No, 18 हो जाएगा। बी की Because आंसर 2 होगा। plus 16 that is 18. 18 18 minus 4 कितना होगा? 14 14 मतलब
E. Very good. D को अभी कितना पकड़ेंगे? सी बन जाएगा। D को कितना पकड़ेंगे? इसको 2 को 18 पकड़े तो C से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? B. Without this subtraction you cannot become a bachelor of engineering. क्या समझ में आया? यस सर। Without subtraction you cannot become a B, मतलब bachelor of engineering. Okay? यस सर। अभी तुम लोग तो बहुत माहिर हो। 2's complement क्या है? बोलो। सर किसी भी नंबर करते हैं वही है ना सर? धीरे धीरे घटते जा रहा है क्यों? 42 स्टूडेंट था, अभी 36 हो गया। बहुत खराब पढ़ा रहा है क्या? नो सर। नो सर। कुछ Interesting जरूरी नहीं काम लग रहा है? कुछ काम होगा ना सर, इसलिए गया होगा शायद। इंटरेस्ट नहीं लग रहा है क्या? नो सर, कुछ काम होगा उसको। ना तुम लोगों को इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है सर। लग रहा है सर। Very good. लग रहा है सर। नेक्स्ट मैंने जो क्वेश्चंस किए थे बोलो। व्हाट डू मीन बाय 2's complement? सर 1's complement plus 1. मैंने पूछा तुम कौन, तुम्हारा नाम क्या है? तुम बोला सर हमारा पिताजी का नाम ये है, हम उसका एक इकलौता बेटा है। अब समझ लो। अरे भाई हमको 1's complement थोड़ी ना पता है। सर जो नंबर सिस्टम का है ना, उसका जो बेस में उसी को घटा देंगे जो आएगा वही उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सर। नो सर। 2's complement 2's complement is nothing but a up to last non-zero term is unchanged, then 0 is converted into 1 and 1 is converted into the 0, like 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0. I want a 2's complement of this number. 2's complement क्यों करता है? नंबर को नेगेटिव करने के लिए। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। अभी मैंने क्या बोला डेफिनेशन? अप टू लास्ट नॉन जीरो टर्म अनचेंज। लिखना चाहते हो तो लिख लो। अप टू लास्ट नॉन जीरो टर्म अनचेंज, देन 0 is converted into the 1 and 1 is converted into the 0. मतलब इधर से देखो फर्स्ट नॉन जीरो टर्म किधर है? ये है नॉन जीरो टर्म, है कि नहीं? यस सर। ये 1 पहला नॉन जीरो टर्म है, इतना दूर तक अनचेंज रहेगा। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। इसके बाद 0 हो जाएगा 1 एंड 1 हो जाएगा 0, जस्ट लाइक ए 1's complement. सर ये तो शॉर्टकट हो गया ना सर। हाँ, इसका 1's complement करो, मतलब 0 को 1 करो, 1 को 0 करो, फिर 1 ऐड करो, देखो यही आएगा। मगर हमको उतना टाइम नहीं है, हमको जल्दी जल्दी करना है। सर ये 4 डिजिट तक ही क्यों कॉमन रखें? अब मैंने 4 डिजिट ऐसा नहीं, मैंने बोला इधर से देखो फर्स्ट नॉन जीरो टर्म जिधर होगा, मान के चलो यही फर्स्ट नॉन जीरो टर्म इधर ही है। जैसे एग्जांपल 0 1 1 0 1 1। समझ गए सर, वो थोड़ा नेटवर्क 1. प्रॉब्लम। इधर से देखो फर्स्ट नॉन जीरो टर्म कौन सा है? ये वाला। ये सर फर्स्ट टर्म। यही सिर्फ अनचेंज होगा। देन 0 कन्वर्ट कर दो 1 में, 1 कन्वर्ट कर दो 0 में, ये हो गया 2's complement। इधर से देखना फर्स्ट जो नॉन जीरो टर्म आएगा उतना दूर तक बिठा दो, उसके बाद 0 is converted into the 1 and 1 is converted into the 0, that is the 2's complement of a number. Is it clear? यस सर। Clear to all of you? यस सर। यस सर। This is the 2's complement हो गया। 1's complement तुम जानते ही हो, 0 to 1 and 1 to 0. Next, I will be enter into the
three type of bus: data bus, address bus, and control bus. Data bus, address bus, and control bus. Mainly data bus and address bus is very important over here. First is address bus. What do you mean by bus? BUS bus? सर डाटा कैरियर डाटा कैरियर। भाई एकदम बंगाली में एकदम सीधा साधा लैंग्वेज में बोलो ना सर। हर एक दिन हम बस में चढ़ के जाता है इधर से उधर, नहीं जाते हो क्या? यस सर। दुबे दुबे जाते हो कि नहीं बस में चढ़ के? दुबे बंगाली আছে अच्छा, नहीं जाते बस में, नहीं सर चढ़ते? बस उसको बोलेंगे जो कि एक जगह से दूसरे जगह के जो जाने या ट्रांसफर करने का जो साधन होता है उसको बस बोलते हैं। Very good. You know, this is a communication medium between one place to another place, right? Right? यस सर। यस सर। Yes. कोई टाटा लेके जाता है, कोई एड्रेस लेके जाता This is also called passenger bus. Am I right? है। यस Because Yes, sir. because it's carry the passenger, right? यस सर। So Yes. address bus क्यों? It's carry the address. Data bus क्यों? It's carry the data. Is it clear? यस सर। जो एड्रेस कैरी करेगा that is called address bus. जो डेटा कैरी करेगा that is called data bus. I think it's clear to everyone. यस सर। So this is called address bus. This is called data bus. There are two types of mainly important bus. In 8051, data bus is 8-bit. Address bus is 16-bit. Data bus is 8-bit and address bus is 16-bit. Is it clear? यस सर। Yes, Now sir. its functions. छोटू कौन है इधर में सबसे छोटा? पता नहीं सर, अभी तक आपस में मिले नहीं। तुम लोग मिले भी नहीं आपस में? नहीं सर। No, फर्स्ट ईयर से ऐसे ही चल रहा है? यस सर। यस सर। क्या जमाना पड़ गया भाई। वाओ, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। श्रीजीत सर। हैं? श्रीजीत। Srijit. Srijit is on the line. वो देखा भी नहीं है सृजित को सर। ना जो भी है, सृजित लाइन में है? यस सर, मजाक कर रहा। जो भी है, सृजित तुम तुम्हारा हाथ दिखा सकते हो ऐसे करके? नहीं है वो हैं? सर, नहीं ज्वाइन किया है क्लास। अभी तो क्लास ज्वाइन किए थे। अभी बोला था तो। कोई भी ऐसा हाथ दिखाओ, ऐसा सृजित मैं कल छोड़ो। सो के आया है अभी। कोई भी हाथ दिखाओ, तो छोटा ही होगा हाइट में। स्वप्नशील दिखा दो। कोई भी दिखाओ ना। सर मेरा कैमरा में टेप लगा हुआ है, स्वप्नशील दिखा देगा। वो सबसे छोटा है सर, स्वप्नशील। कैमरा ऑन करना है सर। हाँ, 100%। ऑन कर। देखो, तुम्हारा हाथ और हमारा हाथ के बीच में बहुत फर्क है। हम एक हाथ में जितना बालू ले सकते हैं, तुम उतना नहीं ले सकते हो। हाँ सर, अमाउंट कम होगा। है, अमाउंट कम होगा। तो तुम्हारा डेटा बस कम है, हमारा डेटा बस ज्यादा है। यस सर। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो तुम्हारा हाथ और हमारा हाथ के बीच में बहुत फर्क है। मतलब तुम्हारा हाथ छोटा है, तो मान के चलो बालू लेकर जाना है एक जगह से दूसरा जगह में, तुम जितना ले पाओगे उससे कई गुना ज्यादा हम ले पाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया बोलो?
आ गया सर। तो ये है डेटा बस। एक जगह से दूसरा जगह लेकर जाओगे डेटा, मतलब सामान कितना ले जा पाओगे, जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा, एक ही टाइम में उतना ज्यादा चला जाएगा। एक फुल पंजाब लॉरी है, एक छोटा लॉरी है, 4 चक्का है, 6 चक्का है, 8 चक्का है, 10 चक्का है, 12 चक्का है, ऐसा समथिंग लाइक दैट। इज इट क्लियर? यस सर। जी सर। So this is called data bus. Next, I am coming into the address bus. Address bus is a very important. Depend upon the address, memory capacity will be defined. Depend upon the address, memory capacity will be defined. Like, what is the memory capacity? Sir, how many bits of address bus in 8051? 16 bit. 16 bit. Very good. Remember this thing. What do you mean by bit? Bit stand for binary number. Bit stands for binary number. Means स्टोरिंग कैपेसिटी, Yes sir. स्टोरिंग कैपेसिटी बोल सकते हैं, बिट। बोल सकते हो। पवन, तुम्हारा पिन कोड कितना है? 829101. कोई कैपिटल में रहते हो क्या? No sir, 09 लास्ट में. लास्ट में 09। वेरी गुड। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट. हजारीबाग में रहते हैं। हमारा पिन कोड है 742188। हम गांव में रहते हैं। सर ये कहाँ का है? मुर्शिदाबाद, बहरमपुर। तुम नेट से देखो और पोस्ट ऑफिस में जाकर पता कर सकते हो ये किधर का है। अभी देखना. राइट? तुम ये भी पता कर सकते हो ये किधर का है। राइट? सो दिस इज जस्ट लाइक ए एड्रेस। दिस इज जस्ट लाइक ए एड्रेस। इज इट क्लियर? Yes sir. ये पिन कोड आए हैं इसीलिए सारा का सारा एड्रेस अलग करने के लिए। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes sir. पश्चिम बंगाल से. इज इट क्लियर? गोल्जन पोस्ट ऑफिस। या, गोल्जन पोस्ट ऑफिस, मुर्शिदाबाद. विलेज प्लस पोस्ट गोल्जन। So 742188 is my pin code. So you know my address is different with respect to you. कैसे पता चल रहा है? With respect to see the pin code. Okay? Yes sir. दुबे, तुम अभी किधर हो? यहीं पर है सर, यही मतलब किधर? यही बोल के कोई जगह नहीं होता है। मतलब क्लास में ही है सर, बुरकुंडा में, क्लास रामगढ़। मतलब कॉलेज में हो? नहीं सर, रामगढ़। मतलब कॉलेज में हो? रामगढ़ में है सर। रामगढ़ में, मगर लग रहा है तो क्लास में हो। हाँ सर। अच्छा, क्लास में क्यों, क्या कर रहे हो? मतलब क्लास में, मतलब यहीं पर रूम में है सर, क्लास में नहीं, रूम में है। रूम में है। वेरी गुड। तुम्हारा कॉलेज देख रहे हैं बढ़िया चल रहा है रामगढ़। बहुत सारा स्टूडेंट आया है। अभी बीआईटी सिंधरी भी अच्छा चल रहा है, और बीआईटी मिश्रा भी अच्छा चल रहा है। मैं 3 जगह में 3 प्लेस खरीदा है टू क्रिएट मेस फॉर बॉयज हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल। हॉस्टल उतना अच्छा नहीं है, बाहर में जो स्टूडेंट लोग रहना चाहते हैं तो हमारा मेस में रह सकते हैं। राइट? टोटल एरिया ऑफ लैंड कितना है हमारा? बोलो। ये तो आपको पता होगा सर। 100 एकड़ होगा लगभग। हैं? 100 एकड़ होगा ना, 100 एकड़ नहीं है। हम तो बोला ही नहीं एक एक जगह कितना बड़ा है। आंसर इज ऐसा होगा, है ना? हम 3 जगह खरीदा है इन 3 डिफरेंट प्लेसेस। मान के चलो एक एक जगह 8 एकर्स करके है। 8 एकर्स तो कितना होगा टोटल एरिया? 24 एकर्स। 24. एम आई राइट? Yes sir. ये याद रखना। मतलब टोटल नंबर ऑफ एड्रेस से टोटल एक एक का जो लैंड है उसको मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद टोटल एरिया निकालता है। एम आई राइट? यस सर। मान के चलो ऐसा पिन कोड पूरा इंडिया में, ऐसा पिन कोड पूरा इंडिया में 500 है। एक एक पिन कोड में पूरा 500 पिन कोड पूरा इंडिया में फैला हुआ है। एम आई राइट? मान के चलो फॉर एजम्पशन
ओके हर एक पिन कोड में 200 करके घर है, तो टोटल इंडिया में कितना घर है? सर 1000 500 into 200. 10,000. Is it clear or not? 500 into 200 means 1 lakh. Am I right or not? Yes, sir. सर यस सर टोटल हमारा कितना घर होगा इंडिया में? 500 into 200 something like that. बीट is stand for binary. So 16 बाइनरी नंबर है एड्रेस के लिए. इधर से स्टार्ट होगा सारा जीरो. सोलह बाइनरी नंबर हम डॉटेड देता है क्योंकि पूरा तो हम लिख नहीं पाएंगे. सारा का सारा 1. ओके सो क्या होगा? 0 0 0 0 राइट. यस सर नेक्स्ट क्या होगा? इफ 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 होगा. यस सर 0 0 0 0 to f f f f. सर हाउ मेनी इन बिटवीन दिस टू? डॉटेड जो दिया इसमें कितना नंबर हो सकता है? इसके बाद क्या होगा सर? 0 1. इसके बाद क्या होगा? 1 0. उसके बाद क्या होगा सर? 1 1. उसके बाद 1 0 0. ऐसे करके सारा कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो ये कॉपी थोड़ा कम हो जाएगा, इतना लिख नहीं सकता है. तो टोटल कितना कॉम्बिनेशन होगा बोल सकते हो? परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 12. सर एक एक नंबर का कितना स्टेट है? मतलब क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है और क्या हो सकता है? 1 हो सकता है. तो एक नंबर का 2 स्टेट. एम आई राइट? यस सर दैट्स व्हाई 2. सर कितना नंबर है? 16. दैट्स व्हाई 2 to the power 16. इतना परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है. इतना तुम्हारा नंबर्स है इधर 2 to the power 16. इज इट क्लियर? यस सर Yes, सर sir. हर एक मेमोरी लोकेशंस में 8 बिट करके डेटा रख सकते हो. हर एक मेमोरी लोकेशंस में 8 बिट करके डेटा रख सकते हो. तो टोटल कितना मेमोरी होगा? मेमोरी कैपेसिटी कितना होगा? 65,536. 9. हर एक मेमोरी लोकेशन में 8 बिट करके 8 बिट बोल रहा है, वो कम कर दिया सर. इनटू 8 बिट होगा कि नहीं? हैं? यस सर 5,24,288. तो 2 to the power 16 into 8 bit. 2 to the power 16 into 8 bit is equal to 2 to the power 6 into 2 to the power 10 byte. Yes, बाइट लिख सकता है. 8 बिट को एक बाइट होता है. बिट को हम बाइट लिखे. 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट. दैट्स व्हाई बिट को मैंने बाइट लिखे है. इज इट क्लियर? यस सर 16 को मैंने 2 पार्ट में बांटे हैं, एक 6 एक 10. सर 2 to the power 6 हो जाएगा 64 और into 1k. Yes. नहीं 2 64 into 1024 byte is equal to 64 किलोबाइट. ये हो गया तुम्हारा टोटल मेमोरी कैपेसिटी. 64 KB. ओके Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. Clear, sir. I'm not going into the details. Tomorrow I will be enter into the another. Tomorrow's first topic will be von Neumann architecture and Harvard architecture. Remember, क्या चीज सर? von Neumann architecture and Harvard architecture. What is the features of von Neumann architecture and what is the features of Harvard architecture?